itself is a curse. तो हमें सोसाइटी की जरूरत क्यों पड़ती है? Nothing is a curse. Nothing is a curse. The only curse is to not know. The only curse is ignorance. And where does ignorance lie, Ritesh? In society or in the individual? Where does ignorance lie? Ignorant कौन होता है? सोसाइटी की कोई कलेक्टिव इग्नोरेंस तो होती नहीं है. इग्नोरेंस जो होती है व्यक्ति के भीतर होती है ना. A group, a collection. Second number fast, please. Collection of ignorant individuals will make for an ignorant society. Correct? Right? Do you see this? Yes. An ignorant individual, even if given the so-called best of circumstances and the most enlightened of societies, will still find that he is not at peace. He will still find that he is being exploited. And he will say everything is a curse. Everything is a curse. Society, Abhesh, cannot harm you at all if you are aware. And if you are not aware, then those around you, even if they have the best of intentions, it would be of little help to you. You would end up getting harmed. Why do you find society a curse? How many of you find something problematic about the society? How many of you sometimes feel like rebelling against the society? Yes? I see just a few hands, but I suppose a few more would certainly be there. And it's not something that is unique to you. Every individual in this broader society at some point or other feels like breaking all the rules and declaring himself free. होता है ना? मुझे कोई सामाजिक बंधन, रूढ़ियाँ, धारणाएं, मान्यताएं नहीं माननी. मैं मुक्त हूँ. ये समाज मेरा शोषण करता है और मुझे ये बात पसंद नहीं है. लगता है ना कभी भी ऐसा? आपको भी लगता होगा, आपको चारों ओर भी आपने देखा होगा, आपको भी ऐसा लगता है. इसमें एक बात समझने जैसी है. कोई आपका शोषण आपकी इच्छा के बिना कर नहीं सकता. आपकी सहमति के बिना आपके साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता. Are you getting this? You cannot be exploited without your consent. No curse can fall on you unless you invite it. I never tire of telling this small story. You see, once I was traveling in a long distance train. Long distance train. So it starts from Delhi in the evening. The next whole day it travels, and on the morning of the third day it reaches its destination. So I was there in my coupe. A lady gets in. She sits on the berth facing mine.
and she is looking utterly depressed. So I noted that, and then I said, fine, होता है, लंबी यात्रा पे जो लोग जाते हैं, होगी किसी बात की उदासी. I didn't pay much attention to it. फिर सांझ मेरी रात हो गई, and now I look at her face. She's showing signs of breaking into tears. मुंह लगा रखा है खिड़की से. अब लंबी दूरी की ट्रेन है तो स्टेशन आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक एक स्टेशन को देख रही हैं, और जितने स्टेशन को देख रही हैं उतना ही ज़्यादा चेहरा रुआसा होता जाता है. So I thought, fine, maybe she's leaving some dear one back in Delhi. तो इसलिए उदासी बहुत ज़्यादा है, दुख हो रहा होगा. I went off to sleep. Morning when I wake up, then I see that she's weeping. The tears are rolling down her cheeks. कुछ मामला गड़बड़ है, ये तो रो ही रही है. सोचा पूछा जाए क्या बात है. Then I thought might be some personal matter. शोभा नहीं देता ऐसी चीज़ें पूछना कि क्या हो गया, क्यों हो रहा है. तो ठीक है, जो भी है. अब वही स्टेशन आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्टेशन को देख रही हैं, और हर बीतते स्टेशन के साथ रोना बढ़ता जाता है. दोपहर आते आते हिचकियाँ ले लेके रोना शुरू कर दिया. अब मैं परेशान हूँ. मैंने कहा क्या हुआ. मैंने कहा आपको पूछना पड़ेगा. मैंने पूछा क्या बात है, तबीयत मेरा ख़राब है, कुछ खा पी लीजिए, चाय वाय पीजिए, दोपहर हो गई है, लंच करिए, क्या हो गया, कुछ बताएं ना. बस रो रही. मैंने भी सोचा नहीं बताना चाहती, कुछ नहीं. शाम आते आते हिचकियाँ दहाड़ में बदल गई, और जितना ही वो स्टेशन देखे उतनी ही चीखकार मार मार के रो रहे हैं. मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बता दीजिए क्या है. आपकी आवाज़ पूरे डब्बे में गूंज रही है, क्या हो गया है. बताएं. कुछ नहीं. बड़ी मुश्किल से रात भर सो पाया. कमरे में रुदन मचा हुआ है, तो कोई सो सकता है. अब सुबह उठता हूँ तो नज़ारा बीभत्स हो उठा है. अब तो न सिर्फ रोया जा रहा है और चिल्लाया जा रहा है, बल्कि पाँव पटके जा रहे हैं, बर्फ पे हाथ मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है. मैंने पकड़ लिया. मैंने कहा अपना तो ठीक है, मेरा सामान भी तोड़ रही है. बैठो, बताओ क्या बात है, किस बात पे इतना अफसोस मनाया जा रहा है, इतना गुस्सा किस बात पर है कि तोड़फोड़ भी मचा दी है. तो मुझे उत्तर देती है कि इतना गुस्सा इस बात का है कि मैं 3 दिन से गलत ट्रेन में बैठी हुई हूँ. और एक स्टेशन जो बीत रहा है वो मुझे याद दिला रहा है कि मैं गलत ट्रेन में हूँ. हंसी आई है. अगर जानते ही हो कि गलत ट्रेन में हो तो उतर क्यों नहीं जाते. अगर जानते ही हो कि गलत समाज में हो, अगर जानते ही होते कि गलत समाज में हो, तो अब तक तुम उतर गए होते. तुम रहना भी इसी समाज में चाहते हो, तुम सब सुख सुविधाएं मान्यताएं भी इसी से लेना चाहते हो, और तुम विद्रोही भी कहलाना चाहते हो. कि देखिए ये थोड़ा अलग टाइप के हैं. द ग्रेट रिबल, तो या तो ये कम्युनिस्ट हैं या ये रॉबिन हुड टाइप हैं, पर कुछ है इनमें जो अलग है. इनमें ताकत है क्रांति कर देने की. जिन्हें क्रांति करनी होती है वो पूछने नहीं जाते हैं, वो कर डालते हैं. ये भी जिंदगी से हमारा एस्केप करने का एक तरीका है. बहुत लोग आपको मिलेंगे, यार इन घर वालों से मैं तंग आ गया, इन घर वालों से मैं तंग आ गया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ. फिर उनको नहीं, तुम चले ही जाओ, अब रुकना नहीं. आज ही तुम 250वीं बार बोल रहे हो कि घर छोड़ के जा रहा हूँ, अब आज चले ही जाओ, रुकना नहीं. यानी क्या पागल वाली बात करते हो. घर छोड़ के ही जाता है. अगर तुम इतने ही परेशान होते तो कब के चले गए होते. एक सज्जन थे ऐसे ही, वो भी समाज से, दीन से, दुनिया से, घर से बहुत परेशान थे.
तो अक्सर आत्महत्या करने निकलते थे, और आत्महत्या करने निकलते थे छाता लेकर के। ये छाता लेके क्यों जा रहे हो? अरे बारिश हो गई तो धूप बहुत है। उसके बाद जाए, छोटा सा कस्बा था, 6-6 घंटे की अंतराल पे ट्रेन आती थी। जाए, लेट जाए, टिफिन साथ में रखा हुआ है खाने पीने का, बढ़िया खाना वाना खाएं, मौसम अच्छा, उसी दिन ये सब करते थे। और जब ट्रेन आने का टाइम हो तो उससे 1 घंटे पहले का बड़ी भारतीय रेलवे की हालत खराब है, हमेशा लेट रहती है, कभी और मरेंगे, बढ़िया टिफिन विफिन उठा करके डकार मार के वापस आ जाए। भाई अगर इतना ही बुरा लग रहा होता तो हम वहां होते नहीं, पर हमारा जीवन ऐसा ही है। हम जहाँ पे होते हैं हमें वही बुरा लग रहा होता है, और जो ही हमें उपलब्ध नहीं होता वो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। वर्तमान आपको उपलब्ध है वो आपको अच्छा नहीं लगता, भविष्य आपको उपलब्ध नहीं है उसकी ओर आपका मन हमेशा भागता है, आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें। कॉलेज उपलब्ध है वो कभी अच्छा नहीं लगता, मैं उपलब्ध हूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, खिड़की के बाहर झांक रहे हैं। मन का काम ही यही है कि जो है उससे दूर भागो, और जो नहीं है उसकी कल्पना में खोए रहो। और जो नहीं है आज, कल को यदि वो हो गया तो मन उससे भी दूर भागेगा। ये मत सोच लेना कि तुम्हें अगर कोई वैकल्पिक समाज दे दिया जाए तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हें कोई भी समाज दिया जाएगा तुम इतने ही दुखी, इतने ही रुग्ण रहोगे, क्योंकि दिक्कत समाज में है ही नहीं, दिक्कत हमने है। समाज हमारा बिगाड़ क्या देगा, और समाज हमें दे क्या सकता है? समाज एक व्यवस्था का नाम है जो आदमी ने आदमी के बीच रची है। एक व्यवस्था किसी का क्या बिगाड़ सकती है और क्या दे सकती है, और उस व्यवस्था में रहना कोई अनिवार्यता भी नहीं है आपके लिए। ड्रॉप आउट, व्हाट प्रिवेंट्स यू? देयर आर मिलियंस ऑफ ड्रॉप आउट्स इन द वर्ल्ड, यू टू ड्रॉप आउट ऑफ द सोसाइटी, ड्रॉप आउट ऑफ द सिस्टम, योर होम, द इंस्टीट्यूशन, ड्रॉप आउट। व्हाट डू यू वांट? बिकॉज इफ यू ड्रॉप आउट तो फिर शिकायत करने को बचेगा क्या? अभी आपके पास कम से कम शिकायत करने के लिए मसाला रहता है, अभी आपके पास एक बहाना मौजूद है कि दुनिया मेरा बड़ा शोषण करती है, घुंघरू की तरह बचता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पद में कभी उस पद में, कभी ये आगे परेशान कर देता है, कभी वो मेरा उत्पीड़न करता है। आई एम ऑलवेज अ विक्टिम। So in case this victimization is taken away from you, you will lose all the support that your ego has. You will never let it go away. चला गया तो शिकायत कर किसकी करोगे? शिकायत नहीं करोगे तो अहंकार को तुष्टि कैसे मिलेगी? है कि नहीं? I'm not saying that what we live in is an ideal society. I'm no spokesperson for this society. All I'm saying is that you are far, far more powerful than whatever social system can be. There is no need for you to complain. There is no need at all for you to complain. Nobody can harm you if you decide that you do not want to be harmed. Have clarity about yourself and about everything around. And then you will find that you can laugh at the society or whatever. This is not your age, you are young, very young. This is not the age to complain. If you see rottenness in the society, if you see falseness in the society, then see it very clearly. And once you have seen it, you are protected from it, you are insulated from it. आपने जिस चीज़ का नकलीपना जान लिया, आपने जिस चीज़ का छद्म होना जान लिया, अब वो चीज़ कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक बार जान जाओ कि ये जो दूध रखा है सामने ये फटा हुआ है, तो क्या अब वो दूध तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता ना, नहीं पियोगे। तो जान लो सब कुछ स्पष्ट तरीके से, जानो तो अब खुश रहो। अब शिकायत करने की कोई बात नहीं है कि सर फटा हुआ दूध, अरे दूध फटा है तो ठीक है मत पियो, कोई बाध्यता थोड़ी है।